Let us move ahead. Now we have Vivek. Vivek is also from Delhi, and he is a single father of two kids, one daughter and son. And he's just life के जो होते हैं भी uncertainties होते हैं. He's just a survivor from them. And I think he's very much a strong believer of जिसको बोलते हैं courage और दोबारा से सब कुछ शुरू करना एंड किसी को जिसको हम विल पावर बोलते हैं टू मूव ऑन इन लाइफ और ये जो एक स्ट्रेंथ होती है कमिंग फ्रॉम अ मेल राइट एंड बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट and he is a pass out of business management course and currently he is heading business operation of a company based out in Noida और वो रहते हैं ही इज इन गाजियाबाद सो ओवर टू यू विवेक आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो थैंक यू So, hi, good evening, all. Before I start, first, congratulations to the founder. मेरे को तो आज पता लगा कि आप founder हो. I was thinking that it's a group and you are the admin. So, lot of badhai, shubhkamnaएं and the wonderful job that you are doing. Mostly, I think coming back to my journey, the two wonderful ladies have covered the kind of strength and self-care. And जो topic मैंने लिया था, that was something about legacy. So legacy is something जो मैं समझता हूँ is about a thought process which is transferred from within family from one generation to another generation. And what Priyanka shared that the kids are they looks up to you. So whatever we do, our kids looks up to us. So my association with my wife was for 19 years. I got married at 22 and a half. And 2021 में COVID की second wave में I lost her. और unfortunately मेरे parents नहीं है. तो क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी बनी कि पोस्ट कोविड एंड ऑल ऑफ माय रिलेटिव्स आर फार अवे so we have to move to at our in-laws place. तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस सही नहीं रहा, which gradually I realized that I have to take care of my kids. I can't leave my kids with my relatives because एक अंदर से इंट्यूशन आ रही थी कि what is the best care of your kid a parent can take. Nobody else will. Neither of your siblings, neither of your, if you think that my brothers, sisters or any of your relative will take care, no, what the best जो चिंता है, जो उसकी फीलिंग है, जो एक पेरेंट कर सकता है, चाहे वो मदर है, चाहे वो फादर है, वो एक पेरेंट ही कर सकता है. So at that point of time, I took a call कि नहीं, मैं अपने बच्चों की सेल्फ केयर खुद ही करूंगा. And मैं did lot of reshuffling in my life. मैंने घर चेंज किया, मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की and thankfully वो हो गया. That was at that point of time. वो कैसे हुआ, वो कैसे strength आ गई, मतलब all of my relatives, all of my siblings were against me with this thought process. मतलब they were, and then kind of a social boycott. लेकिन that I stood with my thought process that I am going to take care. So first was this, that take care of your kids of your own. What the best you can take care कोई और नहीं करेगा. Second, first तो ये stage होगी. Second was now to handle kids. अब 19 years of my association, बच्चे संभाले ही, traveling for work purpose and सब ये, और मुझे पता ही नहीं था पीछे घर पे क्या होता है. But जब मैं पास आया, बिल्कुल सामने आया, तो वो जो गुड़ी गुड़ी पिक्चर मैं देख रहा था बच्चों की, वो बिल्कुल अपोजिट थी. They treated me like पापा आप तो स्ट्रिक्ट हो, आप ऐसे हो, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ऐसा है, and all those things. तो which obviously a man do for the safeguard of the family only. पर्पस तो ये ना, घर प्रोटेक्टेड रहे, घर में एक डिसिप्लिन रहे. वो हमारे बचपन में हमारे फोर फादर्स, मदर हमारी कहती थी कि पापा यहाँ शांत हो जाओ, घर पे कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा. वो सब हमने सीखा, वही सब मैं कर रहा था. बट आजकल के किड उसको कैसे परसीव करते, यू नेवर नोस. और मेरे को तब वो फर्स्ट टाइम काउंटर हुआ. तो आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड कि एक तो मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया एंड आई हैव नो वन टू स्पीक आउट. मैं कहूँ किससे, अपना हार्ट आउट किससे करूं. एंड देन आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मुझे अकेले रेस करने हैं, और अब बच्चे सुन नहीं रहे. सो बैलेंसिंग आउट बिटवीन वर्क, फैमिली एंड रेजिंग किड वाज द बिगेस्ट चैलेंज. सो 2 साल लगे मेरे को
एंड बिटवीन मेरी उस साल मेरी डॉटर का 12th का बोर्ड था. तो इट वाज लाइक वेरी टफ फॉर मी कि उसका बोर्ड है. उसने कहा कि पापा आई विल नॉट इन द कंडीशन टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स. तो मैं कहा ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कैसे हो, बिकॉज 17-18 साल तो मैं और उसकी लाइक प्रियंका ने बी प्रिपेयर्ड फॉर यू टू रेज यू. इट कैन नॉट गो लाइक दिस. तो मेरी एक आदत है कि मैं जो भी प्लान करता हूँ या जो भी होता है, घर का खर्चा होता है, मैं लिख के करता हूँ. मुझे लिख के करना ज्यादा, मैं कीप अ नोट ऑफ दिस फॉर एवरी सिंगल डे व्हेन आई गेट इट. वो मैं थोड़ा सा आदत है. सो आई रेफर फॉर दी प्लानिंग. मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके साथ बैठ के उनको रेफर किया, फिर मैंने उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया उसी डायरेक्शन में. एंड शी पास आउट 12th. फिर उसने ग्रेजुएशन स्टार्ट की. बट वो डिफरेंस जो था बच्चों को हैंडल करना, दैट वाज अ बिग चैलेंज. तो बट समबडी टोल्ड मी, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जैसे आज हम अपना हार्ट आउट कर रहे हैं, तो मैं भी किसी अपने सम ऑफ माय गुड सीनियर फ्रेंड्स से मैं बात करता था. They told- I'll take 1 second of you. I'll just add up one point. I want to tell everybody that Vivek's daughter has got 100% in 12th examination. So this is like he missed out mentioning this thing, but I am aware of this thing. His daughter scored 100% in 12th examination. Yes, So yes, that is a 100%. very respectable thing for you. So I missed out. That's why I'm interrupting. Now you नहीं can नहीं carry नहीं, on. मैं थोड़ा बात को छोटी करना चाह रहा था, बिकॉज ये था 100%, 100. मतलब मैं, मेरी 7 पुश्तों का मुझे नहीं पता कि वो कुछ हुआ होगा, मैंने सुना भी नहीं था. एंड लाइक नंदिनी स्कोर्ड 100%. एंड लेडी श्री राम कॉलेज LSR होता है, जिसका कट ऑफ 2 साल पहले ही 100 पे आता है, उससे कम आता ही नहीं है. उसका LSR में ह्यूमैनिटीज में था, और वो भी बोर्ड के टाइम में था. सो आई थिंक प्रियंका ने उसको बहुत अच्छा रेस किया था. मेरी वाइफ ने उसको बहुत अच्छा रेस किया था, उसको बहुत अच्छा संभाला था, और बहुत अटैच थी, बहुत अच्छा ग्रूम किया था. तो वो उसका ही था, मैं तो जस्ट वॉज पार्ट ऑफ द जर्नी. तो खैर ये तो सिचुएशन ऐसे होगी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज इंडिपेंडेंटली हैंडलिंग के वो ज्यादा अटैच अपनी मदर से हैं, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है. तो व्हेन आई वाज डिस्कसिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट बिकॉज द चिल्ड्रंस आर thinking that what they are doing is right, is actually, and based on your experience you can sense that that is not right. So as a parent you should do what is right. तो मैं कहा यार वो तो रिटेलिएट करते हैं. अभी तो आपके जो मैंने जर्नी सुनी वो बच्चे छोटे हैं, अब मेरी कोई ऐसी एज नहीं है, बट देन आई हैड एन एक्सपोजर टू फेस ऑल दी सिचुएशन. तो मैं कैसे करूं? और मैं, जब बच्चे रिटेलिएट करते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो एज ए मेल फादर आपको क्या होता है, आप भी एग्रेशन में रिटेलिएट करते हो, कब तक सहोगे? मदर, एक मदरिंग जो होती है ना, शुरू से उसको एंटाइटलमेंट होती है अब्सॉर्बिंग की, और वो मेरे साथ नहीं होता था. पर वो ग्रेजुअली फिर मैंने पेरेंटिंग सीखी, अपनी फादरिंग पे मैंने बहुत काम किया जो मैंने नहीं किया था. एंड फिर वो कुछ नहीं, मैंने वही किया जो सही था. एंड वो घर चलाने के लिए या घर बनाने के लिए आपको बुरा बनना पड़ता है तो बुरा बने, नो प्रॉब्लम. You have to be strict at one point of time. So you want to say no to no, irrespective whatever they retaliate. So that was जो parenting थी कि I have to raise the kids, my kids independently, and I have to raise them correctly. And from जो कुछ नहीं किया, from everything that you do at home, from learning cooking to cleaning toilets to managing maids and everything, and doing things correctly. This is what मैंने किया. And आई होप आई एम, अभी भी मैं डेली उसमें कुछ ना कुछ हसल्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता है. बट नाउ आई हैव लर्न टू मैनेज एंड बाय गॉड ग्रेस फर्स्ट 2 years वर वेरी पैथेटिक, वेरी पुअर, बट मैंने हार नहीं मानी. मैंने अपनी विल पावर नहीं छोड़ी, और मैंने कहा मैं बच्चे नहीं छोड़ूंगा. मैंने सब रिश्तेदारों को यही बोला, ऑल ऑफ द फ्रेंड्स हु सजेस्टेड, मैं कहा नहीं, मैं ही ध्यान रखूंगा, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा. मेरी ट्रैवलिंग जॉब है. मैंने 18-19 साल करियर के पीछे बहुत एग्रेसिव रहा, बहुत भागता था, ट्रैवल करता था 20 दिन 25 दिन, नथिंग लाइक दैट. फिर मैंने सबैटिकल डी ग्रोथ ली, मैं नहीं भागा. मैं वो कैरियर की जो भूख थी उसको शांत कर दिया. मैं को व्हाटएवर विल हैपन सो हैपन. बट देन आई सबड्यूड ऑल माय प्रोफेशनल लस्ट, but took care of my family and my kids. So that is all about the legacy that I wanted to mention, is that the feeling of taking care of your kids and not giving up in any of the situation what comes. That's all. And thank you so much. And once again, congratulations to the PSP team and all members. And it's good to hear from everyone
वेरी इंस्पायरिंग. Thank you so much, Vivek. You know, you are a strong father, and the way you are raising your children, both of them, it is really inspiring. Matlab, I really like, and I when I got to know about this thing about Nandini, I was like shocked. I was happy. You know, it was such a good feeling कि देखो जो मतलब मम्मी नहीं भी है और फादर्स भी बच्चों को देखो इतना अच्छे से रेस कर रहे हैं वो ना एक बहुत आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है स्पेशली यू नो इन अ फीमेल जब आप ऐसी बात सुनते हो फ्रॉम अ मेल दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब हमें कोई मेल अपनी तरफ से ऐसी चीजें बताता है कि ही इज रेजिंग चिल्ड्रन और ऐसा बच्चों में आया तो वो एक बहुत इंस्पिरेशन है सबके लिए